Hello 7th class. Now moving forward to the chapter 9 soil. As you know, we have discussed some topics of this chapter in the previous video, and remaining portion we will discuss in this video. Okay. So your next topic is horizon A. We have discussed about the layers of the soil. These layers are called horizons. This layer is also called the topsoil. Horizon A is also called the topsoil. It is visible to us. आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फिगर में देखा था कि सबसे ऊपर जो होरिजन था वो होरिजन ए था, तो वो सबसे ऊपर था, इसलिए डेट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल। और जो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर जो हमें दिखती है, जिसे हम ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड पर जो ऊपर की सॉइल की लेयर है वो टॉप सॉइल होती है। टॉप से क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है? सबसे ऊपर की लेयर। ओके। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स विच मेक इट डार्क इन कलर। उसमें जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसमें ह्यूमस और मिनरल्स की प्रेजेंस रहती है, जिसकी वजह से उसका जो कलर होता है डार्क कलर होता है। ओके। सॉइल की जो सबसे फर्स्ट लेयर है डेट इज़ कॉल्ड होरिजन ए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज top soil, and humus and minerals are present in this layer. The soil is rich in nutrients because of the presence of humus. Humus is the decaying matter in the soil, we all know that. So the first layer is called topsoil, and humus is present in this layer. The topsoil has a soft texture and can retain water easily. That's why plants' roots grow in the topsoil region. Topsoil जो होती है उसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है और उसी में प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से उनमें वाटर पहुंच पाता है। ओके। तो आपको पता चल गया होरिजन ए कौन सा होता है। होरिजन ए इज़ topsoil. ओके। Horizon A is the first layer of the soil and is known as topsoil. And nutrients, humus, minerals are present in this layer. Okay, and plants' roots grow in the topsoil region. The topsoil is a home to many living organisms as well, like insect, worms, etc. टॉप सॉइल जो होता है वो होम होता है मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसा अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी जब सॉइल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका होम होता है सॉइल, तो वो कौन सी लेयर में रहते हैं? वो टॉप सॉइल में ही रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे इंसेक्ट, वर्म्स वगैरह जो होते हैं, बेटल्स, रोडेंट्स एंड मोल्स, वो टॉप सॉइल में ही रहते हैं। ओके। सो दिस इज होरिजन ए। Next topic is horizon B. Horizon B is known as the middle layer. Okay. Second layer is horizon B and also known as middle layer. It is the next layer of the soil which does not contain much humus. Humus is present in the topsoil in the excess quantity, but in the next layer that is called horizon B, humus is less present. Okay. The minerals are found in large quantities in this layer. We have discussed that humus and minerals are present in the first layer also, but in the horizon B, that is the second layer, humus is present in less quantity, but minerals are present in the large quantity. Okay. This layer has a hard texture, light color, and is more compact than the top soil, just opposite the horizon A. We have discussed that horizon A has a soft texture and dark color, and in this layer just opposite of the horizon A, it has a hard texture and light color and is more compact than the टॉप सॉइल। ओके। तो अब हमारा होरिजन ए एंड होरिजन बी डिस्कस हो चुका है। होरिजन ए क्या था हमारा? होरिजन ए इज अ टॉप सॉइल एंड कंटेन्स ह्यूमस एंड मिनरल्स इन द लार्ज क्वांटिटी, एंड इन द होरिजन बी ह्यूमस एंड minerals are also present in this layer, but humus is in less quantity and minerals
are in the large quantities. Okay, and this layer has a hard texture, light color, and also called middle layer. Okay, clear? So next topic is horizon C. This is the third layer of the soil. In this layer, the soil consists of small rocks with cracks in them. These rocks are partly weathered. In the horizon C, that is third layer of the soil profile, soil consists small rocks. इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनमें क्रैक होता है. क्रैक मीन्स यानी वो थोड़े से वेदर्ड हुए हुए होते हैं. वेदरिंग का प्रोसेस था ना, जो पत्थर आपस में टकरा कर टूट जाते हैं और फिर उनसे सॉइल फॉर्म होती है. तो थर्ड लेयर में वो छोटे छोटे जो वेदरिंग के प्रोसेस से जो छोटे छोटे पत्थर होते होंगे, वो वाला जो पोर्शन होता है वो होरिजन सी में होता है. थर्ड लेयर में छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो पार्टली वेदर्ड होते हैं. क्लियर? सो नेक्स्ट लेयर इज बेड रॉक. बेड रॉक इज द लास्ट लेयर ऑफ द सोइल. Okay, the last layer of the soil is called bedrock. It contains large pieces of rocks that are not weathered or exposed to any wind or water. जो लास्ट लेयर होती है वो सोइल की सबसे नीचे वाली लेयर है, जो बेडरॉक कहलाती है. उसमें थोड़े बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, और वो वेदर्ड हुए हुए नहीं होते हैं क्योंकि वो सबसे नीचे वाली लेयर है. इसलिए वहाँ के जो पत्थर उसमें दबे हुए होते हैं वो किसी के विंड या उसके वाटर वगैरह के संपर्क में नहीं आते, कांटेक्ट में नहीं आते, इसलिए उसका वेदरिंग का प्रोसेस नहीं हुआ होता. ओके, so the last layer is bedrock. It contains large pieces of rocks. Bedrock cannot be dug with the help of a spade. It is very hard in texture. जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, it is very hard in texture. उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. टेक्सचर पता है ना आपको क्या है? टेक्सचर होता है जब हम उसे टच करेंगे तो सॉफ्ट आ रहा है या कैसी उसकी प्रकृति है, ये समझ लीजिए. उसे छूने के बाद वो कैसा फील हो रहा है हमें, हार्ड, सॉफ्ट या कैसा. ओके, नाउ ऑल लेयर्स ऑफ सॉइल हैज डिस्कस्ड. दैट फर्स्ट इज होरिजन ए एंड ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल, एंड सेकेंड लेयर इज होरिजन बी known as middle layer, and third layer is horizon C, and last layer of the soil is bedrock and contain large pieces of rock. Okay, so you have to learn these all the layers carefully. Okay, आपसे इसमें डिफ्रेंशिएट भी पूछा जा सकता है कि आपको होरिजन ए और होरिजन बी में डिफ्रेंशिएट करके बताना है, या फिर एमसीक्यू में आएंगे वैसे तो आपके क्वेश्चंस. फिर भी आपको ये डीपली रीड करना है चैप्टर, और वीडियो को भी अच्छे से वॉच करना और सुनना है, जो कि आपको क्लियरली सारी बातें इसकी समझ आ जाएं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज सोइल फॉर्म्ड. वैसे हम ये वाला टॉपिक पीछे एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि सोइल कैसे बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. We all know that weathering is the process in which soil is formed by breaking down the rocks. So this topic is again here, how is soil formed. We know that soil is formed from weathering of parent rock, and the texture of the soil depends upon the parent rocks only. This process takes time, maybe 100 years, and then the fine soil is formed. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेदरिंग के प्रोसेस से सॉइल बनती है और वो बहुत समय लेती है. तो इट मे टेक 100 years, वो 100 years या उससे ज़्यादा भी ले सकती है, जब जाके फाइन सॉइल बनती है, जब जाके वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स सॉइल के तैयार होते हैं. ओके, तो देखिए हमने यहाँ तक सॉइल की जो प्रोफाइल में जितनी भी लेयर्स थी वो डिस्कस कर ली. सॉइल कैसे बनती है ये भी डिस्कस कर लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पीछे आई थी, ह्यूमस, वेदरिंग एंड पेरेंट रॉक वगैरह सब चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल, कि अलग अलग टाइप की सॉइल होती हैं फॉर एग्रीकल्चर. different types of soil is used. So you can see in this picture types of soil. There are 4 types of soil: clay, loam, sand,
silt. You can see these are the different in colors also and टेक्सचर्स ऑल्सो. ये जो सोइल है आप देख सकते हैं, जो ये 4 टाइप की सोइल है, क्ले, लोम, सैंड, सिल्ट. ये चारों सोइल आपको दिखाई दे रही हैं. चारों का कलर भी चेंज है और टेक्सचर भी आप देख सकते हैं इनका अलग आपको दिख रहा है. ओके, सो now we will discuss about the types of soil, that which type of soil is used for which type of crop. Okay, so we will discuss about the types of soil in the next video.